Hello friends, welcome back. And like I told you, we are going to start with the today's chapter or today's topic जिसका नाम है article. Hope so everyone is fine. So let's start. आज का चैप्टर क्या है वैसे हमारा? Article. By the way, what is article? We all have heard there are a and the, this kind of things are there. It comes under article. वैसे कितने टाइप के होते हैं? How many types are there? There are most probably two types. Definitely there are two types. First is yours definite article. First is your definite article and second is indefinite article. पहले तुम्हारा definite article and second is yours indefinite article. Now ma'am, what is the difference? What is the difference between definite article and indefinite article? See, in indefinite article there are two things. First is your a or a and second is your an. And in definite article we have the. Now how we use a, an and the? इसको हम use कैसे करते हैं? Right, most probably many students have confusion between this a and or the. तो आज हम step by step very slowly I'll be telling you how we are going to use this articles. Okay, so let's begin. अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी and की, which is very easy because due to elimination method or because of elimination method we can easily find the answer from and. जब भी कोई आंसर हो, see what I am teaching is related to your competitive examinations also. 8, 9, 10 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11, 12 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं and also the competitive exams level. Okay, so elimination method use कर सकते हैं हम and के लिए. Whenever questions come and you are not sure कि a आएगा, an आएगा, कोई definite आएगा या indefinite आएगा. For that reason सबसे पहले हम बहुत easy way से जाएंगे. So first is what your an. अब an कहाँ पर use करते हैं by the way? Any idea? Guess. Yes. And कहाँ पर यूज होता है? Vowels. Now what is vowels? जिसको पता नहीं है, for them vowels are A, E, I, O, U. Okay? Vowels क्या होते हैं वैसे? A, E, I, O and U. Now I pronounce it as U. I will tell you why I did that and what is the reason behind that. Now let me tell you. Most probably what we pronounce these vowels as A, E, I, O, U, as it is written U, but the pronunciation is not U, it's U. The pronunciation is not U, it's U. Okay, so the pronunciation would be A, E, I, O, U. Everyone clear? Yes? अब मैम आपने तो ऐसे बता दिया इसके pronunciation U होता है. Are you sure कि U ही रहता है? Okay, let me tell you. जब भी हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं एवर वी राइट एन यूनिवर्सिटी? नो. व्हाई? बिकॉज यूनिवर्सिटी भी हो अगर उससे पहले हमने बोला है कि वॉवल्स से पहले वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? एन. राइट, इफ आई एम सेइंग दिस थिंग मीन्स बिफोर यूनिवर्सिटी इज फॉर श्योर दैट एन इज गोइंग टू कम, बट अनफॉर्चुनेटली या तो आ ही नहीं रहा है. then what is the reason behind that? Because the pronunciation, its pronunciation is not u, it's u, due to which whenever we pronounce university we never pronounce it university, it's university. और u करके यहाँ पर कुछ है नहीं. दो letter stands in vowels, u letter आ रहा है vowels में, but then to the pronunciation matters a lot. ठीक है, जैसे कि r बोल रही हूँ मैं, sorry, h, if. अगर हम r बोलते नहीं, an r बोलते ना, please wait for an r. Okay, and r बोलते, वहाँ पर थोड़ी h है, h is there, this letter is there in the vowels, but then to we use an. Why? Reason behind that is, see the pronunciation, r, a, e, I, o, u, ये pronunciation है, ठीक है. इस vowels में we pronounce usually a, e, I, o, u, due to which इसके पहले क्या आना है भाई? an आना है. Any doubt? Whenever you say unity, and unity बोलते हो तुम लोग? unity बोलते हो? unity थोड़ी है वो. Whenever we pronounce this word as unity, unity का pronunciation कहाँ से आ रहा है? u से, but word starts from letter तो u दिख रहा है.
ओके दिख रहा है मैम, तो फिर एंड क्यों नहीं यूज कर सकते, यही बता रही हूँ मैं. The same thing I'm trying to say is that the pronunciation for this vowel is A, E, I, O, U, not U, due to which university U से शुरू हो रहा है, U से pronounce हो रहा है, due to which what happened, which ये an नहीं आएगा उधर. Clear? Okay. Clear with this an? अब आते हैं A के पास. बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं मैम ए को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. पहली बात तो एकदम दिमाग से निकाल दो. whatever you have whatever confusion you have till the date, keep everything aside and please trust me. I will be telling you and a और ये द कहाँ यूज़ किया जाता है. ओके अब मैं कह रही हूँ तुम्हें कि ये तुम्हारा अ है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये अ जो होता है वो सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ होता है. ओके इट इज ओनली फॉर यूज फॉर सिंगुलर वर्ड से, लेटर से ही पता चल रहा है कि ये कोई प्लूरल के लिए यूज होने वाला है. ओके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होगा, नॉट फॉर प्लूरल. इजी? एनी डाउट टिल हियर? नाउ अदर देन वोवल्स, अदर कॉन्सोनेंट. ओके व्हाट आई एम सेइंग, अदर देन वोवल्स कॉन्सोनेंट के पहले अ हम लिखते हैं. ओके सो व्हेनेवर somebody asks you, okay you are clear with an, tell me what about a, where we are going to use this a. तो a का यूज कहाँ पर होना है भाई? यस a का यूज हमारा कॉन्सोनेंट के पहले हो रहा है. ठीक है अब ये कॉन्सोनेंट क्या है मैम, इसको छोड़ के जो भी है वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी हार्ड थिंग और हार्ड डेफिनेशन फॉर दिस. मैं यही बोलूँगी कि इसको छोड़ दो और जो भी है वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है. इजी? एनी डाउट? So use before. Use before consonant. Yes, clear with an and a. We are going to take many examples. Don't worry about that. अब इसका मैं example देती हूँ. जैसे a cup, a stamp. ये क्या है? Singular है. Consonant C थोड़ी हमारा vowels में आ रहा है. Do it come in vowels? No, it won't. ठीक है तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा अ कप, अ स्टैम्प. दिस आर द एग्जांपल्स. ओके क्लियर? सो यू आर क्लियर. होप सो यू आर क्लियर विथ अ एंड एन. नाउ लेट्स मूव टू डेफिनाइट आर्टिकल. नाउ व्हाट इज डेफिनाइट आर्टिकल? और डेफिनाइट आर्टिकल में क्या आ रहा है? द आ रहा है, राइट. व्हाट इज डेफिनाइट आर्टिकल? अच्छा डेफिनाइट से ही पता चल रहा है. जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं डेफिनेटली तो पास हो जाएगा. वी यूजुअली से दैट, डोंट वरी गाय, डेफिनेटली तो पास हो जाएगा. डेफिनेटली तुम बोल रहे हो मतलब क्या बोल रहे हो भाई? तुम डेफिनेटली श्योर हो किसी चीज़ के बारे में? येस यू आर डैम श्योर अबाउट हाँ दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, डोंट वरी अबाउट दैट. सो डेफिनेटली कोई अगर चीज़ पता हो तो वहाँ पर हमें द स्पेसिफिक कोई चीज़ पता हो रिलेटेड टू एनीथिंग, देन वी मोस्ट प्रोबेबली यूज द ओवर देयर. एनी डाउट? नो. अब यहाँ पर कुछ बुक वाली डेफिनेशन आई हैव रिटन ऑन द सेकंड स्लाइड. आई विल रीड फॉर यू. Okay, and then if you want I will explain one more time for a revision and then we are going to solve the questions so that clear crystal हो जाएगा. Okay, so अब यहाँ पर मैंने not to waste time इसलिए मैंने ये लिख कर रखा है कि जो बुक की जो definitions होती है we'll see whatever I have said is the same or not, right. So यहाँ पर क्या लिखा है? and. अच्छा पहले indefinite article का लिखा है तो we'll read that. First is what? and. And is used before singular. And is used before singular countable noun beginning with the sound of vowels. अब इसका pronunciation बताया था मैंने. What is the pronunciation? A, E, I, O and U. No, U. Clear? So pronunciation for vowels would be A, E, I, O, U. हाँ साउंड थोड़ा अजीब लगेगा बट इट्स फाइन. ओके यू हैव टू solve question. You don't have to tell anyone to please listen how I pronounce. Okay, so clear with this. indefinite का and clear हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया. तो अब दूसरा जाते हैं. दूसरा क्या है भाई तुम्हारा? indefinite में ही A. Now we'll read. Okay, we'll see the examples. An apple, an egg, an umbrella. Now see U is here. But the pronunciation is umbrella, right? So A, E, I, O, U,
U. Clear? तो यहाँ पर though it is U, but the pronunciation is umbrella, right? For that reason, we are using what? An before that word. Any doubt? No. Next, an hour. Again, I give you the same example when we are doing that an वाला. ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या दिया था? An दिया था, right? An बोला था. Can see. The pronunciation is R. Pronunciation is R. Yes? So an hour. Any doubt? An hour. Okay? Now, O. O is used before singular countable noun beginning with consonant. The same thing what I told you is written on the board, right? A is used before singular, yes, countable noun beginning with consonant. अब consonant तो बताया था मैडम ने. हम consonant के other than vowels, for you I have written each and every definition in very layman language, right? So I want you all guys to not get deflect, and if you have made any notebook, please do write in that notebook this layman definitions. Okay? इतनी easy definition कहीं नहीं मिलने वाली. Okay? So make sure you write it. हो गया. अब इसका एग्जाम्पल बताइए तो ज़रा. A cup, a stamp, right, etc. जगह नहीं है यहाँ पर. Can write this example. Now let's move further. अब ये तो हमारा डेफिनेट था कि इनडेफिनेट था, पहले वो बताइए. ऑफ कोर्स डेफिनेट में पढ़े थे ना हम. दी को द को किसका कहाँ पर पढ़े थे? डेफिनेट में पढ़े थे. अब डेफिनेट की डेफिनेशन सुन लिए. इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. डोंट फॉरगेट अबाउट दिस. ओके? सो द हमारा singular or plural countable and uncountable noun to specify a particular noun. I told you specifically एक आधी चीज के लिए बताया जाता है इसको. तो specific, particular, specifically a particular noun. जैसे the door, you know, we are talking about कोई बहुत सारे डोर्स के बारे में बात नहीं करें ना, स्पेसिफिक एक डोर के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें क्या आएगा? द डोर. ओके? नाउ द क्लोथ्स. द क्लोथ्स. क्लोथ्स हो गए. ये तुम्हारे क्लोथ्स हैं, ये अपनी फ्रेंड के क्लोथ्स है, ये मेरे क्लोथ्स. स्पेसिफिक क्लोथ्स के बारे में बात करें. ठीक है. अनकाउंटेबल भी बताया मैंने. ओके? बट स्पेसिफिक. अब विंड है. विंड का थोड़ी विंड तो एक ही रहती है. विंड आ रही है, विंड जा रही है. सो देयर वी आर गोइंग टू यूज द विंड. फिर क्या है? पास्ट. पास्ट एक ही है. तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा ये. मेरा पास्ट, मेरा ये. ओके? सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? द डेफिनाइट आर्टिकल के. एनी डाउट? क्लियर? श्योर? एक प्रॉपरली मैं फिर से समझा रही हूँ. इफ यू रियली हैव एनी डाउट कैन सी. विल यूज वन मोर स्लाइड, क्विक रिविजन एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चंस. ओके? नेक्स्ट. एक रिवीजन होगी. आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? एक डेफिनाइट होता है और एक होता है इनडेफिनाइट. ओके? एक होता है इनडेफिनाइट. बताइए इनडेफिनाइट में कौन से? हाँ जी. वन इज ए एंड सेकेंड इज एन. यस, एक ए है और एक तुम्हारा एन है. एनी डाउट? नो डाउट. ओके. और डेफिनेट में तो भाई एक ही रह जाए. मैं डेफिनेटली मैं ही आना है. ठीक है? सो सॉरी डेफिनेट में क्या है? द. एनी डाउट टिल हियर? नाउ टेल मी वेयर इज एन यूज्ड एंड बिफोर व्हाट? सो एन इज यूज्ड बिफोर वोवल्स. यूज बिफोर वोवल्स. अब जिनको वोवल्स पता नहीं उनके लिए ए, ई, आई, ओ और यू. लिखने में यू, प्रोनाउंस करने में ऊ. ओके? देन कम्स ए. यूज बिफोर व्हाट? यूज बिफोर consonant.
यूज बिफोर व्हाट, कॉन्सोनेंट। अभी कॉन्सोनेंट क्या होता है? सी, if any hard word come, I am here, I am giving what is the meaning of that word while writing way, okay, in written manner. So consonant, letters other than vowels, उसको क्या बोलेंगे? What will call that? Consonant. Clear? फिर आता है, इसके तो एक ट्रिक याद रखना, डेफिनेटली जो चीज़ है वो टू डिनोट सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इस वर्ड को लिख के दिया है ब्रैकेट में, द रीजन बिहाइंड दैट इज टू मेक श्योर कुछ स्पेसिफिक सा है, कुछ डेफिनाइट सा है। ये वर्ड जब तक आपके दिमाग में नहीं है तब तक वी विल हैव कंफ्यूजन बिटवीन द एंड ओ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन। अब यहाँ पर तुम्हारी टेस्ट होगी भाई, कितना आता है तुम्हें, कितना समझा है। ओके, so let's begin. Tell me, I'll be reading question for you, will not come in between, so that please read. Take 2 minutes and read it. Okay? Okay, you got sufficient time? Chalo, pehla question. First question is what? She picked up dash fallen plates and carried it to dash wash basin. Now, whenever you find any kind of questions related to article, make sure that you follow or you go with the elimination method. Madam, ये elimination क्या है? What is this elimination? Elimination method is something that all the aspirants do follow usually. कि क्या होता है यहाँ पर, जो चीज़ हमें आती है पहले वो लगा कर देखो, वो नहीं हो रही है तो फिर गो ऑन द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो यहाँ पर वी आर वेरी श्योर अबाउट एन। चेक करो एन आ रहा है, कोई वोवल दिख रहा है आपको? रीड वन मोर टाइम। शी पिक्ड अप डैश फॉलन। फॉलन क्या है तुम्हारा? फॉलन, इज देयर एनी वोवल? नो, तो एन तो आना नहीं। ठीक है, शी पिक्ड अप डैश फॉलन प्लेट एंड कैरीड इट टू डैश वॉश बेसिन। क्या लग रहा है आपको, व्हाट विल कम? Any idea? Come on, try. अब आपको पता है फॉलन प्लेट है, यस, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, यस, सिंगुलर काउंटेबल, उसकी एक प्लेट गिरी एंड कैरीड इट टू डैश वॉश बेसिन। अब वॉश बेसिन तो स्पेसिफिक है ना, यहाँ हर घर में एक ही वॉश बेसिन होता है कि 4-5 प्लेट? हाँ, हो भी सकते हैं, नो डाउट इन दैट, मेरे घर में एक ही। ओके, so come back. She picked up dash fallen plate and carried it to dash wash basin. अब एक ही fallen plate है, वो क्या आएगा? वो आएगा sure. Yes, you should be sure to your answer. Yes, what will come? She picked up a fallen plate and carried it to what? वो आएगा एन आएगा। एन तो आना नहीं है। एन क्यों नहीं आना है? The reason behind that is वॉवल नहीं है मैम कोई, ठीक है, तो क्या आना है? You know, the will come. Why? Specific. Okay? Easy? Next. ठीक है, we'll read first question with answer. She picked up a fallen plate and carried it to the wash basin. Any doubt? No? Now go to the second one. What is second? Second question is trying to say what? You need to make dash plain or plan. Okay, you need to make dash plan. Now tell me, it's not plain by the way, यहाँ पर कुछ गलती हुई है, ये प्लान था, वही मैं सोचूं, it's plan. Tell me, you need to make dash plan. क्या आ सकता है यहाँ पर? What will come?
आर यू श्योर व्हाट काइंड ऑफ, ओके फाइन, एलिमिनेशन मेथड, पहले एन लगाओ, एन बैठ रहा है, नो मैम देयर इज नो वोवल सच काइंड ऑफ थिंग्स, देन डू यू थिंक एन आएगा? नहीं, एन तो गया, एन ए एंड द, एन नहीं है। अब द और ए में देखो, कोई स्पेसिफिक पता है तुम्हें कौन सा प्लान, क्या प्लान? हम घर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यू नो एनीथिंग व्हाट काइंड ऑफ प्लान दे, स्पेसिफिकली तुम्हें कुछ पता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ प्लान दे आर गोइंग टू मेक, सो व्हाट इज गोइंग टू कम? और प्लान, ये भी नहीं आएगा, बस इसकी इनको बुलाइए, ए आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन डैश मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। नाउ चेक वेदर एन इज गोइंग टू कम और नॉट। एन आ रहा है या फिर नहीं? वाई एन किसके पहले आता है, किसके बाद आता है, किसके पहले? पहले किसके आता है? वोवल्स के। वोवल दिख रहे हैं, एम से कोई वोवल था, बताया था मैंने? नहीं तो अब बताइए क्या आएगा? द रीजन डैश मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। बताइए, आपको पता है? अच्छा, एन नहीं आ रहा है, ओके, फिर से यहाँ पर एन कट कर दो, ए और द में पूछो क्या आ सकता है। डू यू नो विच अबाउट हुज मॉम वी आर टॉकिंग? स्पेसिफिकली मेरी मम्मी के, वैष्णवी मैम की मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं जी। आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। ओके, ना हुज, यू डोंट नो ना, तो स्पेसिफिकली कुछ पता नहीं है, तो द तो आना नहीं है। क्या आ गया? ओके फाइन। द रीजन मदर इज पॉजिटिव इज दैट शी लव डीपली डैश चाइल्ड शी बोर। अब तुम्हें कुछ तो स्पेसिफिकली पता है कि किसके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? खुद के, मॉम के खुद के बच्चे के बारे में। नाउ यू स्पेसिफिकली हैव आइडिया अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मदर्स चाइल्ड, यस और नो? तो यहाँ पर वेरी इजीली आंख बंद करके तुम्हें द लिखना। अच्छा वो भी छोड़ो, चाइल्ड, सी करके कुछ, च और चाइल्ड करके कुछ मैंने वोवल्स में बताया था, तो एन तो वैसे भी नहीं आना है वहाँ पर, और द में कंफ्यूजन था, तो सेंटेंस ही बता रहा है कि उसके स्पेसिफिकली बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, सो स्पेसिफिकली कुछ बता रहा है। अगेन डेफिनेटली यू नो समथिंग, देन द इज गोइंग टू कम, यस। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से रीड इट। क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पॉलिटिशियन, अच्छा must, there is no space I have given, sorry. Politician must refrain from inciting dash few people and in turn disturbing peace. Now this is the question, tell guys what is going to come first. Read it. Politician must refrain from inciting dash few people and in turn disturbing peace. क्या आ सकता है? फ्यू पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फ करके ऐसे कुछ तो आने नहीं वाला है किसमें तुम्हारे, कहाँ? ऑफ कोर्स एन के पहले, एन के बाद नहीं आना है बिकॉज वोवल नहीं है वो। ओके, अब बचा क्या? द। एनी आइडिया? यू नो फ्यू पीपल में स्पेसिफिक किसी पीपल के बारे में बात करें, कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे? नो ना, तो क्या आएगा वहाँ पर? यू वांट मी टू राइट? हाँ, अगर नहीं भी चाहते तो भी मुझे तो लिखना पड़ेगा, राइट? तो वहाँ पर क्या आएगा? वो आ जाएगा, वेरी इजी, इज गोइंग टू कम। पॉलिटिशियन मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग अ फ्यू पीपल एंड इन टर्न डिस्टर्बिंग पीस। डन? एनी डाउट? श्योर, होना ही नहीं चाहिए। ओके, फिफ्थ, पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी आर डैश ट्रेडमार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश लर्न। अब कुछ तो स्पेसिफिक बताया है, I'm just coming in between, not disturbing you. Politeness and humility are dash trademark characteristic of dash learn. Now tell me what will come. फटाफट से बताइए जी, क्या आ सकता है वहाँ पर? Politeness and humility are, अब तुम्हें पता चल गया कि ये दो क्वालिटी, the sentence is trying to specify about two qualities, yes or no? कि politeness and humility are dash trademark characteristic। अब दो specific quality के बारे में अगर तुम्हें बताया जा रहा है तो आँख बंद करके तो तुम द लिख ही दोगे, क्योंकि मैडम ने you have said about that specific, if the sentence is trying to say something specific, वहाँ पर क्या आना है? द आना है, very easy। politeness and humility are the trademark characteristic of dash learn। अब डैश लर्न है तो यहाँ पर भी आपको बताया ना किन के बारे में बात कर रहे हैं,
लर्न पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं, जो एजुकेटेड पीपल, सम व्हाट द सेंटेंस इज ट्राइंग टू से। तो द लर्न ना स्पेसिफिकली, अ लर्न थोड़ी आएगा वहाँ पर, राइट। बस और बात करें, कर ही रहते हैं मैम, ठीक है। और क्वेश्चंस, नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज वायलेंस एंड साइलेंस आर नॉट डैश ओनली वे टू एक्सप्रेस। अब यहाँ पर अगेन लाइक फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन टू स्पेसिफिक quality, violence and silence. Now tell me what will come. Now this time it's your turn to answer. बहुत easily, बहुत easy है भाई. Yeah, I don't want to waste time over here. It's exactly what like fifth question. Okay. So violence and silence are not the only way to express anger. Clear? अब seventh question करते हैं. Dash I for I was about to tell the answer but I stopped. Okay. Dash I for dash I and dash tooth for dash tooth will make dash whole world blind and toothless. Now tell me what is going to come. अब यहाँ पर वॉवल का कुछ तो साउंड हो रहा है मैम. हाँ, आँख बंद करके क्या लिखना है? एन लिखना है. एन आई फॉर एन आई एंड. अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अब टूथ है, टूथ है सिंगुलर, वेरी इजी. An eye for an eye and a tooth for a tooth will make dash whole world blind and toothless. Now tell me what is going to come over there. Very easy, बहुत easy है. अब यहाँ पर फिर से specifically बताया ना, an eye for an eye sorry, an eye for an eye and a tooth for a tooth will make the world. I said the answer. And make the world. And make the whole world blind and toothless. Any doubt? Okay. Next. 8. चलो आप solve कीजिए इसको. It is better to forgive and forget rather than carry a dash hurt like dash uneasy burden. Question is what? मैं थोड़ा side में जाती हूँ so that you would read the question. It is better to forgive and forget rather than carry dash hurt like dash uneasy burden. Right? क्या आएगा? Specifically बताएं. The word like uneasy, uneasy. And okay? Any doubt? Sure? Okay. चलो next question. Hope so you are clear with what kind of tricks or rules we have learned, and according to that we are what we are doing, solving the questions. Okay, अब ninth question क्या बोल रहा है? What question number 9 is trying to say? Uneasy lies dash head that wear dash crown. अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा? Uneasy lies dash head that wear dash crown. Tell me what will come. Whenever article, जैसा आर्टिकल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, डू फॉलो एलिमिनेशन मेथड एंड डू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर? नाउ uneasy lies dash head that wear dash crown. Tell me what will come over there. Uneasy lies the head that wear the crown. Again, you know why the is going to come over there. Okay, अब जाओ 10th करिए. 10th, dash stitch in time saves 9. Okay, this is again idiom. Idiom भी हम करेंगे in further lectures. Okay, we'll be doing idiom. What is idiom? Many people pronounce it as idiom, idiom. It's not idiom or something like that. The pronunciation is idiom. Okay. idiom क्या होता है? वैसे मुहावरे जैसे होते हैं. मराठी त्याला म्हण म्हणतो आपण. Okay. So idioms. Okay. Come back and answer the last question. Dash stitch in time saves 9. Very easy. A stitch in time saves 9. This is how we have completed with all the questions of article. Okay. If you guys have any doubt related to this topic, it's a kind request to please ask in comment section. Okay. Any doubt? No, hope so. Clear? So please do watch other videos as well. इसके बाद हम और भी topics लेंगे. I'll be explaining you and we'll be solving the questions.
together. Okay, so I hope you all are clear with today's topic. और अगर कुछ भी doubt हो तो please do ask. Okay, and stay tuned till the next time. Thank you.